डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। एक टॉपिक लास्ट क्लास में शायद रह गया था। I think I didn't start this topic ना. It is your 16.5 article, page number 316 from your book. Distance of a point from a line. From a line. So of course we will be finding the distance. You know already there is a formula distance of a point from a line if you know the equation of the line. That formula you have already studied in your school class 11, 12 class, I think. Here actually we are deriving the formula in terms of direction cosines. If you have a line, you know the direction cosines, then what is the formula? So whatever the formula we have derived so far, we have used the direction cosines concept. So same thing here, I want to find distance of a point from a line in terms of DCs, of course. In terms of DCs. You have, suppose a line is known to you. This is a line. Of course, every time I am taking 3 dimension, no need to tell this thing. You have a line. And its coordinate, suppose I have A and B is a line. It has some GRs, LMN, DCs, LMN. DCs of AB is given to you. LMN. And some point is there, suppose P. I am assuming this point P, whose coordinate is some X1, Y1, Z1. I want to find what is the distance. So distance means I will have to draw what? Perpendicular. Yes. I will draw a perpendicular, of course, on the line AB. Suppose this point is some a PM. So I want to find what is this distance. And what is the data given to you? You have a point P, you have a direction cosines, and this point A is suppose also given to you. I am taking some alpha 1, beta 1, and gamma 1. This point is also given to you. So these data will be required if you want to find a distance, keep in mind. This data is very much required. So what I will assume, let P be a point, X, Y, Z, I am not writing the theory. Let P be the point whose coordinates X1, Y1, Z1, and A be a given line whose direction cosines are A, L, M, N. So we are to find the distance PM. Let us suppose it is small p. Let PM is small p. So I want to find PM. One more thing is given that this line AB is passing through some point alpha 1, beta 1, gamma 1. Okay, it is also given. So now you know that this is given. Now if I want to find, so we know that I will be using some previous formulas. We know that the projection, if I want to find the projection of AP on AB is, projection क्या हो गया AP का AB के ऊपर AM? AM, sir. AM is the projection, you know. Projection means just take the shadow of this line on the line AB. So it is AM only because it is a perpendicular. So AM is the projection. So that means if it is the projection, I can write the AM is equal to, by the formula, you know the DCs, you know this coordinate. So what was the formula? X1 minus, it was the formula L into X1 minus alpha 1 plus M, direction cosine of the line to whom you want to take the shadow, and coordinate difference of AP. ये formula derive करा था हमने.
L into x1 minus alpha 1 plus m into y1 minus beta 1 plus n into z1 minus gamma 1. It is a formula of the projection in terms of fraction, cosines and coordinates. बताइए फॉर्मूला याद है? एक तो एंगल के टर्म में था, इफ यू नो द एंगल, Yes, then sir. formula was, है ना, then the formula was am is equal to ab cos theta. This formula was when you know the direction cosines of the line CD. हमने यहाँ पे CD लाइन ली थी, या AB है, then this is the formula. Now if you take this triangle, one thing you know here. Now in triangle AMP, we have, because it's a right angle triangle, I have the Pythagoras formula. AP square is equal to your, I want to find PM square. So PM square will how much? PM square is equal to AP square minus AM square. Minus AM square. Yes, you know this thing. It is PM square. And PM is, I have supposed some small p. So this implies that P square is equal to AP square. You know AP square is distance between 2 points. What is that? X1 minus alpha 1 square plus y1 minus beta 1 square plus z1 minus gamma 1 का square का whole square. अब square है तो I will not take the square root because it is square. Okay. And minus AM square. So AM I have already calculated here. So AM square means just take this whole square. So I can write in a bracket n into x1 minus alpha 1 plus m into y1 minus beta 1 plus n into z1 minus gamma 1, its whole square. Okay? Its whole square. Now I will arrange some terms. So you know that actually I want to use Lagrange's identity. So first for what I will do, here I will write it. So this is one thing. Let's square it. Minus this. Now this thing I can write, or p square is equal to, so your first term as it is y1 minus beta 1 whole square plus z1 minus gamma 1 whole square. और यहाँ I am just writing L square plus M square plus L square. Can I write this thing? It will not make any change. Yes, sir, you can write. Why? Equal to 1. Because sir, its value 1. इसकी वैल्यू 1 होती है. हाँ, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, तो in place of 1 I can write this. It is nothing but it is 1. So it means I am not multiplying by anything. So this as second term as it is. Second term was x1 minus alpha 1 L plus y1 minus beta 1 M plus z1 minus gamma 1 N. This whole square. Now this I can write by the Lagrange's identity. Lagrange's identity मैंने आपको बताई थी कि this term can be written as x1 minus alpha 1 M minus y1 minus beta 1 L. Its whole square plus it is cyclic. x1 है तो first term now y1, alpha 1 है तो next term will be beta 1. y1 minus beta 1 m के बाद आएगा n minus z1 minus gamma 1 m its whole square plus z1 minus gamma 1 l minus x1 cyclic है ना, gamma 1 के बाद क्या आता है alpha 1 to n its whole square. This thing can be written this by Lagrange's identity.
इसका होल स्क्वायर आप ओपन करेंगे ये टर्म्स देखिए, क्योंकि इसमें ये होल स्क्वायर टर्म्स आ रहे हैं ये सारे, तो व्हेन यू विल ओपन इट विल बी कमिंग द सेम टर्म. You can check it by opening this. So this is the formula for p square. So distance will be what? P. So hence the distance was how much? It was pm. Just take the square root of this. Hence the distance of p from A B is pm is equal to p is equal to, just take the square root of this term. इस टर्म का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आपकी डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा. ओके, होल स्क्वायर एंड टू टर्म्स, ये जो टू टर्म्स साइक्लिक है आप इसे लिख सकते हैं. सो इट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. So in this way, by using the previous information, you can derive the new formulas. सर ये समझा दीजिए थोड़ा, आपने जो ऊपर होल स्क्वायर्स में कन्वर्ट किया ये कैसे किया सर? ये इट इज कॉल्ड लैग्रेंजीज आइडेंटिटी. एक लैग्रेंजीज आइडेंटिटी मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी शुरू की क्लासेस में, उसे देखिएगा. लैग्रेंजी की आइडेंटिटी ये होती थी कि यू हैव दिस टर्म इट कैन बी रिटन दिस. इसको आप जब ओपन करेंगे तो इट विल बी कमिंग सेम. इसमें आपको टर्म्स अरेंज करने, जब आप ओपन करेंगे ब्रैकेट, मल्टीप्लाई करेंगे दिस इंटू एल स्क्वायर, दिस इंटू एम स्क्वायर, दिस इंटू एल स्क्वायर, और फिर यहाँ पर एक्स वन माइनस एल्फा वन का टर्म आ रहा है, इसको अरेंज करके जब आप लिखेंगे और होल स्क्वायर करेंगे ये टर्म आ रहा है. ठीक है, इट इज बाय द लैग्रेंजीज आइडेंटिटी. तो ये इतना डायरेक्ट नहीं है, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है यहाँ पे, बट डायरेक्ट आई एम राइटिंग बाय यूजिंग दिस, बट यू हैव टू सी इट कि व्हेन यू विल ओपन एंड यू विल अरेंज सम टर्म्स दिस टर्म विल बिकम. सर एक पेज की कैलकुलेशन होगी ना सर, बहुत ज्यादा है कैलकुलेशन तो बीच में बहुत ज्यादा है ना. हाँ, कैलकुलेशन होगी बीच में, थोड़ी सी अरेंज करने हैं आपको टर्म्स को. ठीक है, जब आप इसको ओपन करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई करके अरेंज करेंगे, देखिए 3 टर्म्स यहाँ पर है, 3 टर्म्स यहाँ पर है, यहाँ 9 टर्म्स आएंगे आपके पास. ओके, और यहाँ पर ये होल स्क्वायर आप ओपन करेंगे. फिर व्हेन यू विल बी अरेंजिंग द टर्म्स देन यू कैन राइट इन दिस वे एज अ सम ऑफ 3 परफेक्ट स्क्वायर्स. यहाँ पर हमने 3 परफेक्ट स्क्वायर्स बनाया, उनका सम में दिखाया बस. तो ये आपको अरेंज करना पड़ेगा टर्म्स को. कैलकुलेशन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ये आप अपने आप ट्राई करेंगे हो जाएगा. इसको हम लैग्रेंजीज आइडेंटिटी कहते हैं, डायरेक्ट जो टर्म सॉल्व होकर आती है. ठीक है सर इसके पहले वाले स्लाइड में फाई कैसे है? इसके पहले क्या आया है सर इसके वो जो लिखे ना पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर, इसके बाद वाला सर ये फाई स्क्वायर कैसे है? फाई नहीं, पी है. पी ये मैंने अज्यूम करी है कि दिस डिस्टेंस इज सपोज पी. आई हैव अज्यूम पीएम इज इक्वल टू पी. ओके सर, क्लियर. हाँ, फाई नहीं है. आई हैव अज्यूम लेट पीएम इज सम डिस्टेंस पी. आप चाहे तो पीएम ही लिख लें. पीएम इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस. आई हैव जस्ट टेकन रिप्रेजेंटेशन. यस सर, वो कंफ्यूजन हो गया था, फाई कहां से आ गया? नहीं, फाई नहीं है, वो पी है. दैट इज पी. ओके, सो देखो एक प्रॉब्लम है इसमें. प्रॉब्लम नंबर एग्जाम्पल, एक्चुअली सॉल्व एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2. show that the distance of the point one minus 2 3 from the line which is
which is equally inclined to the axis and which passes through the point 2 minus 3 5 is under root 14 by 3. Okay, so you have to show the distance of the point from the line. तो ये उसी टाइप की एक पॉइंट है, सपोज यहाँ पर 1 minus 2 3 and one line is passing through the point 2 minus 3 5 and equally inclined to the axis. So यहाँ पर हमें डिस्टेंस निकालनी है, ठीक। तो दक्ष PHP 27 जी सर। बताइए जरा दक्ष, अगर ये गिवन है, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्लीज बी साइलेंट। आपको क्या लाइन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है यहाँ पर? इतनी इंफॉर्मेशन से कैन यू से समथिंग अबाउट अ लाइन व्हिच इज सर इसके वो डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो सेम है तीनों। हाँ, क्या हुआ मतलब सेम मतलब सर तीनों की वैल्यू सेम है। हाँ, मतलब क्या चीज सेम है? अल्फा बीटा गामा सेम है, अल्फा बीटा गामा सेम है ना? ये 11 से एज आई टोल्ड यू कि अल्फा बीटा गामा, हाँ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स, है ना? जी सर। which makes with the positive axis. So if they are equally inclined, it means what? It is given कि alpha beta gamma are same. क्यों भाई? ये गिवन है आपको। यस सर। क्या अगर आपको याद हो, आई टोल्ड यू कि अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स which are line makes with the positive axis. तो अगर अल्फा बीटा गामा सेम है, it means what? I can say cos alpha, एक ही बात हो गई तो। That means L is equal to M is equal to L. Okay? So which is equally inclined to the axis and which passes through this point. तो अगर ये सेम है तो क्या इससे मैं LMN निकाल सकता हूँ? कोई रिलेशन ऐसी है which will give you LMN? Yes sir. What is the relation? L square plus M square plus N square equals to 1. Yes. वो रिलेशन आपको पता है कि we have already, we know L square plus M square plus N square is equal to 1. इसे उठा के पुट कर दीजिए, सब सेम है। तो अगर मैं M की L रख दीजिए या L रख दीजिए, तो that means suppose L रख दिया 3L square is equal to 1. So you got L is equal to 1 by under root 3. अभी DCs होते हैं तो I am taking just positive sign क्योंकि sign means only the direction, so I can take plus. So this information you know है। अब ये आपको मालूम होना चाहिए था कि I know this thing, इस कंसेप्ट को है इस्तेमाल करना है ऐसे। सर यस सर DCs को पॉजिटिव ही क्यों लिया जाता है, नेगेटिव क्यों नहीं लेते? देखिए अगर नेगेटिव लेंगे हम तो बिकॉज डायरेक्शन कोसाइन है, तो नेगेटिव में सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, है ना? मैग्नीट्यूड आपका माइनस में लेंगे तो इट विल बी टेलिंग यू द डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन कोसाइन किसी लाइन OA के पॉजिटिव साइड में LMN है तो नेगेटिव साइड में माइनस n जाएगी, तो हमने बताया था, है ना? तो माइनस मींस ओनली द डायरेक्शन। बट सर लाइन तो दोनों तरफ मूव करेगी ना। हाँ दोनों तरफ मूव करेगी आपकी, हाँ लेकिन वो लाइन की इक्वेशन जो आएगी निकल के आपकी वो सेम ही आएगी, ठीक है? इक्वेशन में चेंज नहीं होता है, बस डायरेक्शन से आपको पता चल जाएगा कि इस साइड में जैसे लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू mx + c आप लिखते हैं तो पूरी लाइन की इक्वेशन होती है उसमें।
यस सर। हाँ, तो हम साइन पॉजिटिव ले लें या नेगेटिव, नेगेटिव से सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है, लेकिन वो रहेगी वही चीज। ओके ओके सर। तो यू नो दिस थिंग, वन मोर थिंग इज गिवन टू यू कि ये पॉइंट आप मींस पी पॉइंट गिवन है और ए पॉइंट गिवन है। अब आपको पी ए और एल भी पता चल गया, तो आई कैन यूज दिस फॉर्मूला नाउ, दिस, है ना, क्योंकि हमें क्या निकालना था, यस बस सर। बस हमें ये निकाल, व्हाई आई वांट टू फाइंड दिस थिंग ओनली, आई वांट टू फाइंड पी, आई नो पी, आई नो ये पी विल बी बाय द फॉर्मूला, पी विल बी हाउ मच, अंडर रूट x1 minus alpha 1. Now x1 is 1, alpha 1 is 2. How much? 1 minus 2. 1 minus 2 means minus 1 into फॉर्मूला देखिए into m, तो mn तो सब रूट 3 है ही आपके, तो माइनस 1 into 1 by रूट 3 and minus y1 minus beta 1. So y1 minus 2, beta 1 is minus 3. So minus 2 plus 3, how much? 1 by 3, है ना? And L is also. So you have minus 1 by रूट 3 इट्स स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? ये फर्स्ट टर्म है ना। तो यहाँ पर आपके पास कितना है, हेयर यू हैव दिस इज योर x1, दिस इज योर y1, दिस इज योर z1, दिस इज योर अल्फा 1, बीटा 1, गामा 1। इसको उठा के आप फॉर्मूले में रख देना है, बस कर लेंगे इसे सॉल्व यस सर। फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म लिखा मैंने, ऐसे ही आप सेकंड टर्म लिखेंगे एंड थर्ड टर्म। तो फाइनली व्हेन यू विल सॉल्विंग इट विल बी कमिंग अंडर रूट 14/3, ये सॉल्व होता जाएगा। So it was a problem of this. इस पे एग्जाम्पल 1 भी है, एक शॉर्ट प्रॉब्लम है, इसे आप अपने आप ट्राई करिएगा। Okay, so next thing we have now equation of a straight line. If you know the direction cosines, then how to find equation of a straight line? Next important topic. Equation of a straight line. So equation of a straight line in 3D, है ना, of course in 3D. So क्या information given है आपको, given है, let us suppose let a x1 y1 z1, it is given to you be any given point on the line and suppose direction cosine is also given, L, M, N be the GCs of the line। ठीक है, तो जैसे आपको अगर लाइन की इक्वेशन प्लेन में बात करूं, जो आप लिखते हैं y = x + c, है ना, रिपीटेडली आई एम यूजिंग दिस लाइन बिकॉज यू आर वेरी मच फैमिलियर। तो जिस चीज से आप फैमिलियर होते हैं उससे अंडरस्टैंड कर जाते हैं। तो आपको पता है कि अगर आपको कोई लाइन की इक्वेशन निकालनी होती है तो या तो आपको उसका स्लोप पता होना चाहिए, है ना, y = mx + c में यू नो द स्लोप एंड यू नो द इंटरसेप्ट, या आपको ये पता होना चाहिए कि इफ इट इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट से पास हो रही है तो भी आप इक्वेशन निकाल सकते हैं, y - y2 = m x - x2 ऐसे करके, है ना। तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, उससे लाइन निकाल देते हैं। तो यहाँ पर भी आपको क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक तो गिवन ये है कि इट इज पासिंग थ्रू सम पॉइंट एंड सेकंड थिंग इज गिवन टू यू द डायरेक्शन कोसाइन। ये दो चीजें गिवन होना जरूरी है इफ यू वांट टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। एक तो किसी नोन पॉइंट से पास होना चाहिए और दूसरा उसके डिसीज पता होना चाहिए। ओके, देन आई वांट टू फाइंड कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। सो इट इज गिवन 3 डायमेंशन में, ये लाइन है आपके पास,
अब ये लाइन मेरी 3 डायमेंशन में जब ड्रॉ करता हूँ कहाँ होगी ये? सर रूम के स्पेस में। स्पेस में। कमरे के अंदर कहीं भी। जी, अब ये मत सोचना ये कभी वाई जेड वॉल पे है, ये वॉल पे नहीं है, बीच में लाइन है। तो 3 डायमेंशन फिगर है यू नो, तो बीच में कहीं एक लाइन जा रही है। सपोज यू हैव ए इज अ पॉइंट, आई विल अज्यूम ए इस पॉइंट से पास हो रही है, इट इज पासिंग थ्रू एक्स वाई जेड एंड so you know if you want to find a equation what you have to assume, you will assume suppose a general point x y z कि x y z टर्म में आएगी ना, तो I will assume कि let us suppose this line is passing through a some point x y z, तो हमारी इक्वेशन x y z की टर्म्स में आ जाएगी बस। ओके that p x y z, p तो हमें मानना पड़ेगा ना भाई, अननोन आर्बिट्रेरी पॉइंट, तभी तो इक्वेशन निकल के आएगी। तो let p be any point, क्योंकि इट कितने पॉइंट से पास हो रही है लाइन ये, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? 2 पॉइंट्स सर। नहीं, ये तो मैंने आर्बिट्रेरी पॉइंट माना है, वैसे कितने पॉइंट से पास हो रही होगी इन जनरल? इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स से, इनफाइनाइट सर, है ना? यस, तो इनफाइनाइट पॉइंट से पास हो रही होगी, तो हमने एक पॉइंट आर्बिट्रेरी सपोज कर लिया कि लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ऑन द लाइन, इस लाइन को हमने अगर कुछ कुछ ए भी कह दो या कुछ भी कह दो, ऑन द लाइन एंड लेट म्यूट करो भाई अपना माइक, थोड़ी देर क्लास बची है फिर उसका सुन लेना गाने वाले सुन। सो इट इज एपी, आई एम अज्यूमिंग एपी इज डिस्टेंस इज आर, आई वांट टू फाइंड द फॉर्मूला इन टर्म्स आर कैंसिल हो जाएगा वैसे तो हमारा, लेकिन मैंने यहाँ पर ड्राइव करने के लिए, क्योंकि एपी की कुछ डिस्टेंस होगी, हमने मान लिया कि इस डिस्टेंस इज आर x minus x1 whole square. This is your point. Now I will use the projection concept. So projecting this line, अब ये line segment हो गया आपका AP, because you know both the end point. So I am projecting the line segment AP on the coordinate axis. Coordinate axis. So अब यह लाइन आपके रूम में जो इमेजिन अ लाइन इन द स्पेस, तो ये लाइन यू कैन प्रोजेक्ट ऑन द एक्स एक्सिस, यू कैन प्रोजेक्ट ऑन द वाई एक्सिस, यू कैन प्रोजेक्ट ऑन द जेड एक्सिस, बिकॉज दिस लाइन विल बी मेकिंग एंगल अल्फा बीटा गामा विद द एक्सिस रेस्पेक्टिवली, है ना? इज क्लियर? जैसे अगर मैं यहीं पे इसके पैरेलल ले लूं, फॉर एग्जांपल सपोज आई एम टेकिंग अ लाइन पैरेलल टू दिस वाई एक्सिस, so if you will project, you know this angle will be how much? Beta. It is parallel to y-axis, this line. So I want to project it. So when you will project it here somewhere, so what will happen? You know, cos beta will be how much? Cos beta will be y minus y1, है ना? तो यहाँ पे अगर आपने प्रोजेक्ट किया तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी? कोऑर्डिनेट आपने प्रोजेक्ट किया अगर, तो ये डिस्टेंस है y और ये y माइनस y1, आई कैन राइट y माइनस y1 अपॉन r। बोलिए। यस I सर, am taking this line parallel to y axis, तो ये एंगल बीटा होगा, क्योंकि लाइन मेकिंग एंगल विद द पॉजिटिव y axis ऑलवेज बीटा, है ना? तो इफ आई वांट टू फाइंड cos बीटा इज हाउ मच? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना? तो बेस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे देखो, तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पर कितना है? y यहाँ पर है y1, तो y माइनस y1, क्योंकि ये y एक्सिस पर है, अपॉन r, सो इट मींस व्हाट? y माइनस y1 इज इक्वल टू r cos बीटा, और r कितना है आपका? इसे हम m भी तो कहते हैं, m, तो y माइनस y1 विल बी mr। बोलिए। इट मींस आई कैन से, यस सर, तो इन जनरल आई कैन से x माइनस x1 इज इक्वल टू lr, y माइनस y1 इज इक्वल टू mr, एंड ये आ जाएगा सिमिलरली। ऐसे आप cos बीटा, cos अल्फा, cos गामा,
cos beta is m. So this will be the relation in coordinates and x minus x1. Okay, so that means x को I can write x1 plus LR, y is equal to y1 plus mr, and z is equal to z1 plus nr. Okay, so this I can say this is the equation of a line. It is a equation of a line in terms of x1, y1, z1. 3 dimension में line equation है ये. So it means thus the set of points on the given line is I can say ये set of points आ गए x1 plus LR, y1 plus MR and z1 plus NR, where R any number. R is any number. R क्या होगा आपका, जो भी आप x y z लेंगे उससे जो डिस्टेंस होगी. Okay, so this is a equation of a line. पैरामीट्रिक फॉर्म में जैसे आती है उस टाइप से. Now if n is not 0, m is not 0, n is not 0, then the equation of a straight line is, अगर हम l not 0, m not 0, n not 0 ले रहे हैं तो equation of a line you can write x minus x1 upon l is equal to y minus y1 upon m. ये लिख सकता हूं मैं क्योंकि सब किसके इक्वल है, r के. देखिए x minus x1 upon l, y minus y1 upon m is equal to r.